Okay, let's start our discussion on management accounting. Okay, first we will see what is operating expenditure, then non-operating expenditure. Your homework was to solve question number 1 to 5. Okay, any problem in question number 1? Okay, let me just see question number 1 first. No, sir. No problem. Because I had solved that question in the class. Okay, then question number 2. Any problems? I think you have problem in calculating OPEX and NOPEX, right? Yes, sir. Okay. Now, what is OPEX? It is the expenditure that we incur in our daily operations. Okay. It is nothing abnormal. It is completely normal in nature. Okay. What is NOPEX? This expenditure is not incurred in the daily operations. It is abnormal in nature and we do not incur these expenses in a recurring manner. Okay. So OPEX and NOPEX. Now tell me, I will take now 5 examples. Loss on sale of furniture. Do we do that every day? Loss on sale of furniture. No, sir. Okay, so it is a NOPEX. Then loss on sale of loss by fire. Loss by fire. No pecs. It is also a NOPEX. Okay. Then selling expenses. Selling expenses. Selling expense. OPEX. It is a OPEX. OPEX. Then Sir. office expenses. Sir, basically, NOPEX is the cost that we incur, that we do not incur on daily basis, na? Yes. And OPEX is the daily basis cost, loss. Okay, instead of saying that daily basis, so say that it is not in relation to our operations. Okay, if you are incurring loss Okay. by sale of furniture or loss by fire, it is not the nature of our operations. Okay, it is something which is abnormal and we do not do that in a repetitive manner in our organization. Okay, after that, Yes, sir. office expenses. Okay, now I No think pecs. in question number 2, they have used the wrong formula. Okay, they have used the wrong formula. Okay, let's see what they have asked in question. They have asked first what is gross profit ratio, which I think you have calculated easily. Then net Yes. profit ratio, that is also easy. Then what they have asked is what is operating profit ratio? What is operating profit ratio? Yes, what is the formula they have given? Cost of goods sold plus operating expenses divided by sales into 100. Cost of goods Goods sold sold plus plus operating expenses divided by sales divided by sales yeah, I will just write multiple Okay. 100. Now see, we are talking about what? We are talking about profit, right? Yes, sir. Does this numerator look like profit to you? Are you calculating profit or are you calculating cost? Loss, not This profit. this looks like cost, na? COGS plus Cost OPEX. of. Yes, sir. ये हमको पैसा मिला है कि हमारा खर्चा ही है COGS OPEX. Cost of. बोलो बोलो. Goods sold. It is a cost Cost on goods of that. goods sold OPEX expenses है और cost of goods sales profit or income. बाप रे. चलो वापस एक बार.
ये तुम्हारा टर्नओवर है। मैं टर्नओवर में से सीओजीएस माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? अरे हमने देखा ना, टर्नओवर माइनस सीओजीएस क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, हम्म। आया ना? ग्रोस। हाँ तो हाँ सर, यस सर। ये हमारा इनकम है टर्नओवर, और ये हमारा कॉस्ट है सीओजीएस, और हमारा प्रॉफिट क्या है फिर? ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अभी हमको ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें से अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, जो भी हमने सीओजीएस में इंक्लूड नहीं किया है वो माइनस करना है, ठीक है। तो अभी मैं ओपेक्स इसमें से माइनस करता हूँ, ठीक है। ओपेक्स माइनस करता हूँ, फिर इसमें से मैं नोपेक्स माइनस करता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें नोपी भी ऐड करता हूँ, ठीक है। नोपी क्या होता है? इनकम होता है कि एक्सपेंडिचर होता है? इनकम। इनकम होता है, ठीक है। तो इनकम। ये मैंने इनकम ऐड कर दिया और कुछ कॉस्ट माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा कि क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है ना, तुम्हारा इनकम है ना। हाँ सर। यस। तो मुझे एक बात बताओ, इन्होंने जो ऊपर लिखा है सीओजीएस प्लस ओपेक्स, सीओजीएस मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉस्ट है। अरे ये क्या हो गया शुभम? यस सर। तुमको अभी भी यही दिख रहा है ना, व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है ना। यस सर, वी कैन सी इट। अचानक से कुछ तो खुल गया मेरे लैपटॉप में, एक मिनट। ये सॉफ्टवेयर का पैसा नहीं दिया तो मुझे पैसे मांग रहे सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे सीओजीएस मैंने लिख दिया है कॉस्ट है, ये ओपेक्स भी कॉस्ट है। तो मैं अगर न्यूमरेटर की तरफ देखता हूँ तो मुझे इनकम का नामो निशान नहीं दिख रहा है कि नहीं? यस। तो यस ये सर। पूरा का पूरा कॉस्ट है, ये फॉर्मूला ही गलत लिख दिया है वो लोगों ने। ये ऑपरेटिंग रेशो है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं है। ये क्या है? ये जो फॉर्मूला दिया है ये क्या है? इस फॉर्मूला को बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है। तो उन्होंने शायद गलती से वहां पे प्रॉफिट वर्ड ऐड कर दिया, और वो जिसने बुक लिखा है वो शायद उसको उसका नॉलेज नहीं था, ठीक है। मतलब एक बंदे ने पूरा कैलकुलेशन करके दूसरे को दिया और तीसरे ने बुक लिखा है, ऐसा हो गया शायद, इसीलिए। बोलो आरुण, बोलो। सर, ये जो ऑपरेटिंग रेशो वाला जो सम आप कर रहे हो सर, आप वो सॉल्व करके दिखा सकते हो क्या एक बार? उसमें अरे थोड़ा मेरे ऑफ को कोर्स ऑफ ये कोर्स, अब भी यार, करेंगे, अब भी क्या, अब भी सॉल्व करेंगे, ठीक वो है। ये समझ में आ गया ओपेक्स क्या? में हाँ सर, ये समझ में आ गया यस सर। सर। चलो अभी इसको सॉल्व ओपेक्स करेंगे, ठीक। क्या आता है में? अभी मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, पहले ऑपरेटिंग रेशो सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, बस नाम अलग है, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो पहले सॉल्व करते हैं। उन्होंने पूछा है Included कि, in that, बोलो। sir, 100 is also included in that formula. COGS plus OPEX upon sales into 100, or it is excluded from the देखो, formula. वो जो इंटू 100 है, आप अगर कोई चीज हाँ परसेंटेज में लिखते हो तो या तो आप हाँ, उसको यस सर। 0.8425 लिख सकते हो या फिर 84.25% लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा इंटू 100 तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको सब केसेस में जब भी परसेंट निकालना है आपको इंटू 100 ही करना है, ठीक है। तो ये बात याद So रखो। we have to write percent. So we have to write the answer in percent. What sir? देखो उन्होंने क्या पूछा है? रेशो पूछा है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। Yes. ये अगर टाइम्स में आता है, मतलब 2 या 3 ऐसे आता है, तो समझ लेना है कि ये टाइम्स में आ रहा है, ठीक है। अगर ये पॉइंट में Sir. आ रहा है, ऐसे 0.84 वगैरह, तो समझ लेना ये Yes sir. परसेंटेज है। तो ये केसेस में आप इंटू 100 करोगे। Okay sir. ओके सर। यहाँ पे इंटू Okay sir. 100 करना है क्या? नहीं करना है, ठीक नहीं है। नहीं। No. इसका एग्जाम्पल क्या है? करंट रेशो। करंट रेशो में इंटू 100 करना नहीं है। ये जो हम लोग कर रहे हैं एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम या फिर और भी जो फॉर्मूलाज है, यहाँ पे हमको इंटू 100 करना है, ठीक है। Sir. चलो अभी प्रॉब्लम को सॉल्व So करते what sir? Operating ratio. हैं। अभी ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला अभी मैंने लिख दिया था, सीओजीएस प्लस ओपेक्स।
अभी मुझे OPEX. बताओ COGS कैसे निकालेंगे? Gross profit. COGS के कितने फॉर्मूलाज है वो बताओ पहले. Opening stock plus purchase plus wage plus direct expenses minus closing stock, and another formula is, sir, sales minus gross profit. ठीक है, अभी मुझे बताओ सेल्स कितना है? Sir, 1 minute, sir. Sales na sir, 100, 3 crore 20 lakh. 3 crore 20 lakhs, sir. तो ये करके आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, Yes sir. सॉरी, ये करके आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, अभी ओपिक्स कैसे निकालेंगे? जरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ देखो. कौन से एक्सपेंसेस लगता है हर रोज होते हैं? Selling and distribution expenses. ठीक है, तो ये आ गया आपका 8 + 45.6. कितना आ गया ये? करो करो फटाफट करो. इजी क्वेश्चन है एकदम, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बस बुक में गलत दिख गया वो लोगों. Sir, what is that to admin expenses? Administration expenses. कहाँ पे लिखा? Admin dot x to below, sir, that only sales and distribution expenses. मेरे बुक में नहीं है वो. आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हो ना? Yes, sir. Yes sir. To क्या लिखा है admin वहाँ dot पे? expenses. To admin dot expenses 45,60,000. अरे वही है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो एक ही होता है, बस उन्होंने ऐड कर दिया रहेगा उसको. आपने नया बुक लिया है क्या अभी? नहीं सर, जो आपने PDF भेजा वो उससे ही कर रहे सर. PDF जो भेजा है उसमें देख रहे सर. ओके ओके ठीक. वो एक्चुअली TY का है वो PDF, लेकिन प्रॉब्लम्स वही है. हम लोग सीधा TY के मतलब फाइनल ईयर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हमको सिंपल नहीं Okay, sir. करना, हमको हार्ड करना है. ठीक है, चलो ये 216 आ गया क्या तुम्हारा बराबर? हाँ यस सर. उसके बाद इसका टोटल लो कितना आता है बताओ? 53.6 53.6 upon 320. अभी बताओ कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है? Yes. 0.84. जीरो 0.8425 आ रहा है शायद, राइट? Yes sir. ठीक है, Into 100 ना सर दे. तो अगर ये इसको मैं इस ऐसे भी लिख सकता हूँ 84.25 into 100. हो गया. नहीं Yes, sir. इसको इंटू 100 नहीं करना है, ये जो दिया है ना No, no. इसको बस इंटू 100. ठीक है, Yes. तो ये क्या हो गया तुम्हारा ऑपरेटिंग रेशियो है. ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है क्या? नहीं. ठीक है, No, तो ये हमने operating सॉल्व ratio. कर दिया है. दूसरा क्या पूछा उन्होंने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ठीक है, अभी अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालता हूँ, एक बात बताओ, अगर मेरा सेल्स जो है वो 100 रुपए है, उसका कॉस्ट 80 रुपए है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 20. 20 होगा. तो अभी हमने ऑपरेटिंग रेशियो निकाला. ऑपरेटिंग रेशियो कितना था? 84.25. हमारा सेल्स कितना है? 100. अभी 100. मुझे बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा? 16.75. 16.75. 16.75. ठीक है, तो वो क्या करना चाहते थे मालूम है? 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो ऐसा दिखाना चाहते थे, लेकिन वो टाइपिस्ट को कुछ तो और ही समझ में आ गया और उसने वो और ही कुछ तो लिख दिया बुक में. ठीक है, तो सीधा हम लोगों ने निकाल दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है? 16.75%.
ठीक है, आ गया क्या समझ में? कुछ है क्या डाउट और? ठीक है, सर एंड द जो लोग लेक्चर नहीं कर रहे सर वो पिछले दिन देखेंगे फॉर्मूला और फिर कुछ तो गलत लिख के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, बोलो, कुछ बोल रहे थे तो आप? सर फॉर्मूला से एक बार सॉल्व करके दिखाएगा सर एक बार पूरा। कौन सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? हाँ वो फॉर्मूला में क्या सर नहीं आ रहा है आंसर मेरे को। कौन से फॉर्मूला की बात कर रहे हो? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस अरे हाँ, वो नोपेक्स। सॉल्व करना है हमको, सॉल्व करना है। रुको 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 जरा, रुको। ओके सर। ठीक है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अगर एक फॉर्मूला ऊपर का गलत हो गया समझ लेना बाकी के सब कुछ गलत है। ठीक है, उसके यस सर। बाद क्या लिखा है उन्होंने? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ठीक है, तो अभी ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बताओ, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैसे निकालते नेट प्रॉफिट हैं? प्लस मुझे एक बात नोपेक्स बताओ, माइनस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। Operating income. बोलो हाँ या ना, हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं। यस सर। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट चाहिए, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें से क्या ऐड करना है और क्या माइनस करना है? इसमें हम लोग ऐड करेंगे नोपी, और माइनस क्या करेंगे? OPEX. ये मैंने गलत लिख दिया, आपने हाँ भी बोल दिया। OPEX. नेट सिर्फ प्रॉफिट प्लस सिर्फ नोपेक्स नोपी ना। ठीक है, सिर्फ मैं ओपेक्स माइनस करूंगा ग्रॉस प्रॉफिट में से तो मुझे मिल जाएगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ठीक है, या फिर मैं और क्या कर सकता हूँ बोलो? ये मैं आ गया नीचे, ऊपर से नीचे, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ? नीचे से ऊपर जा सकता हूँ। कैसे? जो उन्होंने नेट नेट प्रॉफिट दिया प्रॉफिट है उसमें क्या ऐड करूंगा मैं नोपेक्स और क्या माइनस करूंगा? नोपी अपॉन सेल्स। माइनस नो। ठीक है, तो तुमको जो फॉर्मूला अच्छा लगता है वो यूज करो, दोनों भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये करके भी आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। हाँ सर। तो बताओ मुझे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है तुम्हारा? 56 नोपेक्स ये हो गया। T6 plus सर आंसर 21.75 आ रहा परसेंट। ये कि कैसे आ रहा है 21.7? 104 तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। Yes, sir. उसमें से तुमको सिर्फ ओपेक्स माइनस करना है। तुमने क्या सीओजीएस वापस माइनस कर दिया क्या? नहीं सर, सर ये किया ओपेक्स कितना वो है तुम्हारा? 56 ये हमने निकाला ना यहाँ पे, ओपेक्स यही ओपेक्स है तुम्हारा। अपना सर नेट प्रॉफिट 56 लाख है सर। हाँ हाँ ठीक, अच्छा तुम नीचे से ऊपर गए क्या? ठीक है, मैं वो भी सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। हाँ नोपेक्स किया 4 लाख। कितना? 56 लाख है तुम्हारा। क्या है ये? 56 लाख तुम्हारा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें से माइनस करना है हाँ 9.6। सर ऐड नहीं करना है क्या नोपेक्स, फिर माइनस नोपी नहीं करना है। देखो एक बात समझो, हमको ये क्या है? 56 है तुम्हारा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, नेट प्रॉफिट है। इसमें से माइनस क्या करेंगे? पहले नोपी।
जो कितना है NOP 9.6, हाँ सर। और इसमें ऐड करेंगे हम लोग अभी नोपेक्स। नोपेक्स नोपेक्स कितना है कितना है बताओ? सर फिर? 4 आ रहा है मेरे को, 4 lakhs 4, ठीक है, 4 आ रहा है, क्योंकि ठीक है। अपॉन अभी निकालो 320। कितना आ रहा है। हाँ सर, एक मिनट। 50.4 आ रहा है क्या पता को? 0.6 प्लस 4 to divide by, हाँ सर 50.4 आ रहा है। ठीक है, तो यस हमारा सर, यस ये सर। बॉटम अप अप्रोच भी हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है और ये भी हमारा हो गया। तो 50.4 आ गया। मैंने इसके बाद इसको डिवाइड किया 320 से, तो अभी बताओ मुझे कितना आ रहा है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो? 15.75%। तो आपका आंसर है 15.75%, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो बुक में दिया है वो आपको यस। फंसाने के लिए दिया है। वो चाहते हैं कि आप वापस एक बार एग्जाम फॉर्म भरो और पैसे बर्बाद करो, ठीक है। लेकिन आपने लेक्चर्स किए हैं अटेंड, आपको सब कुछ मालूम है, ठीक है। चलो ये अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कुछ भी डाउट है अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बचा हुआ? नहीं सर। नो ठीक सर। है, मैं एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना चाहता, ठीक है, तो मुझे पूछते रहो क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं इसको सबको इरेज कर देता हूँ, जाने को पूरा ही उड़ा देता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी देखा क्वेश्चन नंबर 1, फिर देखा क्वेश्चन नंबर 2। अभी बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ प्रॉब्लम है क्या? कि ऐसा है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है क्या? सर एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं एब्सेंट था सर, तो उसका आपने लेक्चर अपलोड किया है क्या सर? नहीं नहीं, मैंने एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है क्लास में, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है और सिर्फ फॉर्मूलाज बताए। हाँ। क्योंकि अगर एक नहीं एक सर। प्रॉब्लम लेते बैठूंगा तो देख सकते हो बुक पे प्रॉब्लम्स कितने। हाँ, नहीं सर, वो क्वेश्चन 3 का जो जैसे फॉर्मूला टर्नओवर रेशियो, वो टाइम पे मैं था नहीं सर। ठीक है, अभी एक काम करेंगे, वापस एक बार सब फॉर्मूला सॉल्व ये करेंगे, देखेंगे, ताकि आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करो। मैं आपको फॉर्मूलाज पढ़ाने में फोकस करता हूँ, ठीक है। यस सर। तो अभी मुझे बताओ, पिछले टाइम हमने कितने फॉर्मूलाज देखे थे टोटल? बात। 12। बोलो पहला फॉर्मूला कौन सा था? आपने नोटबुक में लिखा नहीं फॉर्मूलाज? एक काम करना है, आपके नोटबुक पे लास्ट पेज पे सब फॉर्मूलाज लिखने, एक ही जगह पे सब फॉर्मूलाज लिखने हैं आपको, ठीक है। यस सर। पहला फॉर्मूला मुझे करंट लगता रेशियो। है शायद करंट रेशियो लिया, और सबसे लास्ट वाला कौन सा रेशियो लिया? COGS का सर। COGS। उससे पहले? DTR। DTR। ठीक है, हमने दिया DTR, ठीक है। अभी हम लोग सारे टर्न और रेशियो वापस एक बार देखेंगे। पहला आता है इन्वेंट्री टर्न और रेशियो। ये जो इन्वेंट्री है इसको स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 3 चीजें आती है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। इसके बाद दूसरा क्या है? डेटर्स टर्न और रेशियो। और उसके बाद है क्रेडिटर्स टर्न और रेशियो। अभी देखते हैं इन्वेंट्री टर्न और रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है इन्वेंट्री टर्न और रेशियो का, वो है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS अपॉन एवरेज। के बाद डेटर्स टर्न और रेशियो का क्या फॉर्मूला है?
क्रेडिट सेल्स अपॉन डेबिटर एवरेज, या तो डेटर्स ले लो या फिर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ले लो, ठीक है, इसके बहुत सारे नाम है। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ले लो। अभी एवरेज अकाउंट रिसीवेबल में क्या क्या आता है, ठीक है, तो इसमें दो चीजें आती है। एक तो डेटर्स का एवरेज आता है, या फिर जो बिल्स रिसीवेबल है उसका भी एवरेज आता है, ठीक है। तो ये दोनों को आपको ऐड कर देना है, आपको एवरेज अकाउंट रिसीवेबल मिलेगा। अगर ये दिया है तो इसको यूज करो, अगर नहीं दिया है तो सिर्फ एवरेज डेटर्स को यूज करो, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी इसको है, अगर ये दिया है तो इसको यूज करना है, अगर नहीं दिया है तो इसको यूज करना है, ठीक है। अभी क्रेडिट सेल्स क्या होता है, ठीक है, आपने जो भी सेल्स किए उसमें से आपको पहली चीज क्या माइनस करनी है, कैश सेल्स माइनस करनी है, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट, पहले सेल्स रिटर्न माइनस करनी है, सेल्स में से क्या माइनस करना है, सेल्स रिटर्न, फिर आपको इसमें से कैश सेल्स माइनस करना है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स। एक बात बताओ, सेल्स रिटर्न क्या होता है? जो गुड बेचने के बाद वापस आए। वापस आ गया, ठीक है, डिफेक्टिव है इसीलिए कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको वापस रिटर्न कर दिया, तो ये हमको माइनस कर देना है, ठीक है। और कैश सेल्स वो होता है जिसके लिए हमको पेमेंट ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। अभी सिर्फ 10 ही मिनट बचे हैं, अभी फटाफट फॉर्मूला में खत्म कर देता हूँ। उसके बाद क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो हाँ उसी का भाई है ना, ऊपर वाले का। तो सेल्स की जगह हम लोग परचेजेस लिखेंगे अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, अगर एवरेज अकाउंट पेबल दिया है तो उसको यूज करना है, नहीं तो एवरेज क्रेडिटर्स को यूज करना है, ठीक है। इसमें भी वापस दो चीजें होती है, एवरेज क्रेडिटर्स के बाद एवरेज बिल्स पेबल, पेबल ठीक है। तो जो ऊपर किया वही करना है नीचे भी, इसको भी प्रायोरिटी 1 है, इसको प्रायोरिटी 2 है। जो डेटा दिया है उसको देखो समझो और उसके हिसाब से फॉर्मूला को यूज करो, ठीक है। तो हमने अभी 3 रेशियोज देखे, इनको बोलते हैं टर्नओवर रेशियो, क्या बोलते हैं, टर्नओवर रेशियोज, इन्वेंटरी टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर और क्रेडिटर्स टर्न, ठीक है। उसके बाद एक और है, उसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है ठीक है, इजी है बहुत, टर्नओवर अपन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये है फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अभी मुझे लगता है उन्होंने क्वेश्चन में कुछ तो गलती कर दिया है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में डिनोमिनेटर में लिख दिया है वर्किंग कैपिटल प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है कि नहीं बताओ, बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि वो रॉन्ग है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है टर्नओवर अपॉन वर्किंग कैपिटल वाला, ठीक है। उसके बाद तो ये भी क्या था, ये भी टर्नओवर रेशियो। आप लोग सुन रहे हैं क्या मेरी बात? यस सर। अभी कुछ और फॉर्मूला देखते हैं फटाफट। एक फॉर्मूला है सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है, इसके टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है, इक्विटी प्लस प्लस डिपेंचर्स, डिबेंचर्स। डिवेंचर्स नहीं बोलना है, क्या बोलना है, लॉन्ग टर्म डेट बोलना, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है। एक्चुअली वो एक ही आइटम है जो
लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं। लेकिन अगर उन्होंने दिया होगा कि 10% लॉन्ग टर्म लोन, तो उसको भी आपको लॉन्ग टर्म डेट में लेना है, ठीक है। चलो उसके बाद ये क्या था, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। हम सेल्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स के क्या क्या नाम है, और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस, नहीं नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा कंटेंट बता रहे हो, ठीक है। इक्विटी बोल सकते हैं या फिर इसको नेटवर्क बोल सकते हैं, ठीक है। एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो आपको मालूम ही है। उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट है, हम इसको एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ईबीआईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईबीआईटी बोलते हैं। अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, बताओ। इसमें से अगर मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे, टैक्स। मुझे मिलेगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ठीक है। अभी इसमें से मैंने टैक्स माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट और सरप्लस जो डिवाइड होता है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के बीच। अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलता है, ठीक है। ये बिफोर टैक्स है, ये आफ्टर टैक्स, ठीक है। और ये क्या है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पे टैक्स माइनस किया है, ठीक है। ये अभी बटेगा दो लोगों में, एक प्रेफरेंस शेयर्स में और इक्विटी शेयर्स वालों में। प्रेफरेंस शेयर्स पे हम लोग क्या देंगे, हम लोग देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। और जो बचा हुआ है उसमें से या तो इनको इक्विटी डिविडेंड दे देंगे, इक्विटी शेयर्स को देना जरूरी नहीं है, ठीक है। देना है, दिया देना है तो दे सकते हो, नहीं दिया तो भी चलेगा, ठीक है। या फिर पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। हम रिजर्व लोग एंड ये देख सरप्लस। चुके हैं। आप वापस भूल गए सब कुछ, 2 दिन आपको छुट्टी मिल गई, आप सब कुछ भूल गए है ना। नो सर। ऐसा करोगे क्या वापस, फॉर्मूलाज को हर रोज देखना है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज ही तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो यस मार्केट सर। में वैल्यू होने वाला है। ये फॉर्मूलाज आपको, ये मतलब फॉर्मूलाज कुछ नहीं, ये तुमको सेकेंड्स में कैलकुलेट करके बताना है सब, ठीक है। तुम्हारा अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज चालू है। न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया है क्या, इकोनॉमिक्स टाइम में ऐप डाउनलोड किया सर। ठीक है। अभी अभी ठीक है, आप न्यूज़पेपर नहीं ला सकते तो ऐप से डाउनलोड करके देख लो, ठीक है। उसमें जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनाना है। नोटबुक के हेडिंग में लिखना है कि ये टॉपिक पे आज ये आर्टिकल आया है, ये आर्टिकल में ये फाइनेंस की बातें हुई है, सर ने हमको इसमें से इतना ही पढ़ा है, सर ने ये चीज हमको नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वो चीज जो मैंने नहीं पढ़ा है, आपको कुछ नया लगा, आपको सीखना है, सीधा उसका मुझे फोटो भेज देना है आपको, ठीक है। मैं सीधा क्लास में उसी से शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये सब पढ़ के इसका आपको प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेशन करना है कुछ मालूम नहीं, ठीक है। तो मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ये कर रहा हूँ, रेकमेंड कर रहा हूँ, और बुक्स भी पढ़ो, ठीक है। बुक्स से ऐसा हो गया कि बुक्स आज बोर हो गया, सब कुछ हो गया सॉल्व, सब कुछ इजी, ऐसा जब हो गया ना, इकोनॉमिक टाइम्स देख लेना, आप वापस बुक पे आ जाओ, ठीक है। क्योंकि ये जो बुक लिखा है ये बहुत ही बेसिक बुक है, बीकॉम के बच्चे या फिर 12th के बच्चे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है ये, इसमें कुछ हार्ड नहीं, ठीक है। तो अगर आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको जो एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको आप अगर बहुत अच्छे से यूज करना चाहते हो, तो प्लीज बोल रहा हूँ मैं, न्यूज़पेपर पढ़ो हर रोज, आर्टिकल्स लिखो, कुछ नहीं समझ में आया मुझे मैसेज करो, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो 1 मिनट बचा है, आपको आज क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो भी है 10 तक, कब तक 10 तक सब सॉल्व करने, अगर वापस कोई प्रॉब्लम आया तो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ओके सर। बोलो हाँ या ना।
अभी एक Yes, काम sir. करो, सब लोग चैट बॉक्स में अभी आपका अटेंडेंस लिखो, ठीक है? देखो, मैं फॉर्मूलाज ग्रुप पे सेंड करने से अच्छा है कि आप वीडियो देख लो, मैं वीडियो डाल देता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है? क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट मार के आपको भेजना मतलब मुझे वापस वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है? मैं अभी अपलोड करता हूँ। मुझे शायद आपने बोला था कि फ्राइडे को भी कि आप अपलोड कर दो पहले फॉर्मूलाज वाला, यस सर। Yes, sir. तो वो वीडियो और आज का ये जो वीडियो है, ये 2 वीडियोस मैं आज अपलोड करूंगा। याद रखना है आपको कि मैं ये वीडियोस मतलब मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है, लेकिन जाने दो, आपको चाहिए तो हम लोग करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.